Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about hepatitis. So let's discuss about hepatitis. First of all, definition of hepatitis. Hepatitis Greek hepat liver and its inflammation is an inflammation of the liver characterized by the presence of inflammatory cells in the tissue of an organ. Hepatitis can be acute inflammation of the liver that lasts less than 6 months or a chronic inflammation of the liver that lasts more than 6 months and has a many different causes. हेपेटाइटिस ग्रीक में हिपैट का मतलब होता है लिवर और इट्स का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। लिवर में इन्फ्लामेशन को हेपेटाइटिस कहते हैं और हेपेटाइटिस की कंडीशन में लिवर में इन्फ्लामेटरी सेल्स प्रेजेंट होती है। अगर लिवर में इन्फ्लामेशन 6 मंथ से कम टाइम के लिए हो रहा है तो उसे एक्यूट हेपेटाइटिस कहेंगे और अगर इन्फ्लामेशन 6 मंथ से ज्यादा टाइम के लिए हो रहा है तो उसे क्रोनिक हेपेटाइटिस कहेंगे और ये अलग अलग कॉजेज की वजह से हेपेटाइटिस होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस। Now we discuss causes of hepatitis A. It can be caused by a group of viruses known as the hepatitis viruses, including A, B, C, D, E, and G. Other viruses may also cause it, such as those that cause mononucleosis, Epstein-Barr virus, or chickenpox, varicella virus. Hepatitis also refers to inflammation of the liver caused by drugs and alcohol abuse or toxins in the environment. The term viral hepatitis is used to describe infection of the liver caused by hepatotropic viruses. हेपेटाइटिस ग्रुप ऑफ वायरसेस की वजह से होता है जिसे हेपेटाइटिस वायरस कहते हैं। जैसे कि हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस जी वायरस की वजह से हो सकता है। अदर वायरसेस की वजह से भी हो सकता है जो मोनोन्यूक्लियोसिस कॉज करते हैं जिसका नाम एस्टिन मार वायरस है, चिकन पॉक्स जो कॉज करता है जिसका नाम वैरिसेला वायरस है की वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है। हेपेटाइटिस ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है, अल्कोहल अब्यूज की वजह से हो सकता है, टॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है। वायरल हेपेटाइटिस लिवर में इंफेक्शन को डिस्क्राइब करता है जो हेपेटोट्रोपिक वायरसेस की वजह से होता है। दीज आर कॉजेज व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर हेपेटाइटिस। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द हेपेटाइटिस थ्रू दिस फिगर। दिस इज अ हेल्दी लिवर एंड दिस इज अ लिवर विद इंफ्लेमेशन। Now we discuss clinico-pathological sequence in different types of hepatitis. The various clinical patterns and the pathologic consequences of different types of hepatitis can be studied as under. अब हम pathological changes को discuss करेंगे different types of hepatitis में। First, carrier state, an individual harboring hepatitis infection and capable of transmitting it, but without having any symptoms of disease manifestations, is called a carrier state. A carrier may be an asymptomatic healthy carrier who does not suffer from ill effects of the infection or an asymptomatic carrier with chronic disease capable of transmitting the organisms. Hepatitis A and hepatitis E do not produce any carrier state. However, hepatitis B is responsible for largest number of a carrier in the world. Carrier state वो स्टेट होती है जिसमें इंडिविजुअल में हेपेटाइटिस इन्फेक्शन डेवलप होता है और वह कैपेबल होता है इन्फेक्शन को स्प्रेड करने के लिए, लेकिन उसमें इन्फेक्शन के सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। टू टाइप के कैरियर होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक हेल्दी कैरियर जिनमें इन्फेक्शन के इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं और सेकेंड एसिम्प्टोमेटिक कैरियर जिनको क्रोनिक डिजीज होता है और वो कैपेबल होते हैं ऑर्गेनिज्म को ट्रांसमिट करने के लिए। हेपेटाइटिस ए और ई का कैरियर स्टेट नहीं होता है और सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस बी का कैरियर स्टेट होता है। Now we discuss pathologic changes in a carrier state. Healthy hepatitis B virus carriers may show no changes or minor hepatic changes, but asymptomatic carriers with chronic disease may show changes of a chronic hepatitis and even cirrhosis है। हेपेटाइटिस बी वायरस के जो हेल्दी कैरियर होते हैं उनमें चेंजेस नहीं होते, अगर होते भी है तो माइनर चेंजेस होते हैं। और एसिम्प्टोमेटिक कैरियर जिनको क्रोनिक डिजीज होता है उन्हें चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि उनको क्रोनिक हेपेटाइटिस हो सकता है, इवन लिवर सिरोसिस भी हो सकता है। Asymptomatic infection, these are cases who are detected accidentally to have an infection with one of the hepatitis viruses, as detected by their raised serum transaminases or presence of antibodies, but are otherwise asymptomatic। ये वो केसेस होते हैं जो एक्सीडेंटली डिटेक्ट किए जाते हैं कि हेपेटाइटिस का इंफेक्शन है, जैसे कि सीरम में ट्रांसएमाइनेज एंजाइम का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेंगे, उस बेस पर डिटेक्ट होते हैं, अदरवाइज ये एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। Third, acute hepatitis, an inflammation of the liver that lasts less than 6 months. It is the most common consequence with acute inflammatory involvement of entire liver. Clinically, it is categorized into 4 phases. Acute inflammation, अगर liver में inflammation 6 months से कम टाइम के लिए हो रहा है तो उसे acute inflammation कहेंगे और इसमें पूरा liver inflammatory process में involve रहता है और इसकी 4 phases हैं।
Incubation phase, this is the period during which the virus multiplies in the hepatocyte. The period varies in different types of hepatitis. 15 45 days for hepatitis A, 30 to 180 days for hepatitis B, 30 to 50 days for hepatitis D, 20 to 90 days for hepatitis C, and 15 to 60 days for hepatitis E. During this period, the patient remains asymptomatic, but infectivity is the highest. इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें वायरस का लिवर सेल्स में मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये पीरियड अलग अलग हेपेटाइटिस में अलग अलग होता है। जैसे हेपेटाइटिस ए में 15 टू 45 डेज का होता है, बी में 30 टू 180 डेज का होता है, डी में 30 टू 50 डेज का होता है, सी में 20 टू 90 डेज का होता है, और ई में 15 टू 60 डेज का होता है। और इस पीरियड में पेशेंट में सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी वह इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकता है। Pre-stage phase, this phase is characterized by anorexia, nausea, vomiting, fatigue, low-grade fever, muscle aches and pain, diarrhea. इस फेज में पेशेंट में एरोरेक्सिया, nausea, vomiting, fatigue, low-grade fever, muscle aches and pain, diarrhea देखने को मिलता है। Third stage phase, this phase is characterized by jaundice, high fever, shocking chills and headache, right upper quadrant brain pruritus as a result of elevated serum bile acids, dark-colored urine due to bilirubin, urea, clay-colored stools due to cholestasis, loss of weight and abdominal discomfort due to enlarged tender liver. इक्टेरिक फेज में पेशेंट में जॉइंटिस, हाई फीवर, शॉकिंग चीज, हेडेक, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, प्लूराइटिस देखने को मिलता है। प्लूराइटिस स्किन डिजीज होती है जिसमें स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और ये सब बाइल एसिड का लेवल एलिवेट होने की वजह से होता है। और यूरिन में बिलीरुबिन की प्रेजेंस की वजह से डार्क कलर का यूरिन होता है। कोलिस्टेसिस की वजह से क्ले कलर का स्टूल होता है। कोलिस्टेसिस मतलब कि बाइल का फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। और वेट लॉस होता है पेशेंट का, और लिवर इनलार्जमेंट की वजह से एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है पेशेंट को। For post-icteric phase, the icteric phase lasting for about 1 to 4 weeks is usually followed by clinical and biochemical recovery in 2 to 12 weeks. The recovery phase is more prolonged in hepatitis B and hepatitis C. Up to 1% cases of acute hepatitis may develop severe form of the disease, fulminant hepatitis, and 5 to 10% of cases progress on to chronic hepatitis. पोस्ट स्टेज फेज 1 to 4 वीक्स की होती है, और इसमें क्लिनिकल और बायोकेमिकल रिकवरी 2 to 12 वीक्स में होती है। और हेपेटाइटिस और बी और सी का रिकवरी पीरियड जो रहता है वो लंबा होता है। 1% जो एक्यूट हेपेटाइटिस के केसेस होते हैं वो फल्मिनेंट हेपेटाइटिस में चेंज हो जाते हैं। फल्मिनेंट हेपेटाइटिस का मतलब कि सीवियर हेपेटाइटिस में, और 5 to 10% जो केसेस रहते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस के वो क्रोनिक हेपेटाइटिस में चेंज हो जाते हैं। Now we discuss pathologic changes in acute hepatitis. Usually the liver is slightly enlarged, soft and greenish. Microscopically mildly injured liver cells appear swollen with condensed granular cytoplasm tapped as a balloon. Degeneration in others, acidophilic degeneration occurs in which the cytoplasm become intensively eosinophilic. Nucleus becomes smaller, which is extruded from the cells, leaving behind a necrotic acidophilic mass called Councilman body or acidophil body. Breathing necrosis is another more severe form of hepatocellular injury and acute viral hepatitis, and may progress to fulminant और chronic hepatitis। लिवर का ग्रॉस स्ट्रक्चर देखने पर वह इनलार्ज, सॉफ्ट और ग्रीन कलर का दिखाई देता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर लिवर सेल माइल्डली इंजर्ड, सेलेन और साइटोप्लाज्मा कंडेंस दिखाई देता है, जिसे बैलोइंग डीजेनरेशन या फिर एसिडोफिलिक डीजेनरेशन कहते हैं। साइटोप्लाज्मा में यूसिनोफिल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, न्यूक्लियस छोटा और सेल से बाहर निकला हुआ रहता है। एसिड नेक्रोटिक एसिडोफिलिक मास को काउंसिलमैन बॉडी या एसिडोफिल बॉडी कहते हैं। ब्रीजिंग नेक्रोसिस जो रहता है वो सीवियर फॉर्म होता है हेपेटोसेलुलर इंजरी का एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में, और ये फल्मिनेंट और क्रोनिक हेपेटाइटिस में भी चेंज हो सकता है एक्यूट हेपेटाइटिस। Now we discuss chronic hepatitis and inflammation of the liver that lasts more than 6 months with symptoms along with biochemical, serologic and histopathologic evidence of inflammation and necrosis. It is seen in hepatitis B and hepatitis C combined, hepatitis B and hepatitis D infection। अगर लिवर में इन्फ्लेमेशन 6 मंथ से ज्यादा टाइम के लिए हो रहा है तो उसे क्रोनिक हेपेटाइटिस कहेंगे, और इसमें सिम्टम्स के साथ साथ बायोकेमिकल, सीरोलॉजिकल, हिस्टोपैथोलॉजिक एविडेंस भी देखने को मिलते हैं इन्फ्लेमेशन और नेक्रोसिस के। और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की वजह से क्रोनिक हेपेटाइटिस हो सकता है, और बी और डी के कॉम्बिनेशन से भी हो सकता है। पैथोलॉजिक चेंजेस इन क्रोनिक हेपेटाइटिस, इट इज characterized by
Piecemeal necrosis defined as periportal destruction of hepatocytes at the limiting plate. Piece by piece, along with infiltration of lymphocytes and proliferation of bile ducts as a response to injury. Another characteristic feature of chronic hepatitis is a bridging necrosis. क्रोनिक हेपेटाइटिस में पीसमेल नेक्रोसिस और पेरिपोर्टल डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है लिवर सेल्स का। पीसमेल नेक्रोसिस का मतलब पीस में नेक्रोसिस, और उसके साथ साथ लिम्फोसाइट्स का इन्फिल्ट्रेशन होता है, बाइल डक्टल्स का प्रोलिफरेशन होता है, और ये सब इंजरी की वजह से होता है। और ब्रिजिंग नेक्रोसिस भी देखने को मिलता है क्रोनिक हेपेटाइटिस में। 5. Fulminant hepatitis or acute liver failure. Acute liver failure is the appearance of a severe complication rapidly after the first sign of a liver disease such as a jaundice, and indicates that the liver has sustained severe damage, loss of function of 80 to 90% of liver cells. It is the most severe form of acute hepatitis in which there is a rapidly progressive hepatocellular failure. Two patterns are recognized: submassive necrosis having less rapid course extending up to 8 months, and a massive necrosis in which the liver failure is a rapid occurring in 2 to 3 weeks. Fulminant hepatitis of either of the above two varieties can occur from virus, hepatitis B virus and hepatitis C virus, and the non-viral drug toxicity, poisoning, hypoxic injury causes. एक्यूट लिवर फेल्योर सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है जो कि लिवर डिजीज के फर्स्ट साइन के बाद देखने को मिलता है, और ये इंडिकेट करते हैं कि लिवर में सीवियर डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से लिवर की सेल्स का 80 टू 90% फंक्शन लॉस हो जाता है। और ये जो रहता है सीवियर फॉर्म होता है एक्यूट हेपेटाइटिस का, जिसमें रैपिडली प्रोग्रेसिव हेपेटोसेलुलर फेल्योर होता है। और टू पैटर्न्स इसके देखे गए हैं: सब मैसिव नेक्रोसिस जो कि लेस रैपिड होता है, इसमें 8 मंथ्स का टाइम लगता है, और मैसिव नेक्रोसिस जिसमें 2 टू 3 वीक्स में लिवर फेल्योर होता है और ये रैपिड होता है। फल्मिनेंट हेपेटाइटिस दो कॉजेस की वजह से हो सकता है: वायरल जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस, और हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से हो सकता है। नॉन वायरल ड्रग टॉक्सिसिटी, हाइपोक्सिक इंजरी और पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है। Now we discuss pathologic changes in fulminant hepatitis or acute liver failure. Grossly, the liver is a small and sunken. The capsule is a loose and wrinkled, extensive area of muddy red and yellow necrosis. Acute yellow atrophy are seen microscopically. Two forms of fulminant necrosis are seen. Some massive necrosis, here large groups of hepatocytes are wiped out, leading to collapsed reticulum framework, but with orderly regeneration and restoration or a normal architecture. And massive necrosis, here entire lobules are necrotic with condensed reticular framework and disorderly regeneration. लिवर का ग्रॉस स्ट्रक्चर देखने पर वो स्मॉल श्रिंक दिखाई देते हैं, कैप्सूल भी लूज होते हैं, रिंकल्स होते हैं, और एक्सटेंसिव एरिया जो रहता है मडी रेड येलो कलर का नेक्रोसिस देखने को मिलता है। और जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो फल्मिनेंट नेक्रोसिस के टू टाइप देखने को मिलते हैं: सब मेसिव जिसमें लिवर सेल्स के बड़े बड़े ग्रुप्स जो रहते हैं वो वाइट आउट हो जाते हैं, रेटिकुलम फ्रेमवर्क कोलैप्स हो जाता है, लेकिन फिर उनका एक ऑर्डर में रीजनरेशन हो जाता है, फिर से वो बन जाते हैं, उनका नॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाता है। और जो मैसिव नेक्रोसिस होता है इसमें पूरे लैब्यूल्स जो रहते हैं उसमें नेक्रोसिस हो जाता है, पूरे लॉब्यूल्स में नेक्रोसिस हो जाता है, और जो रेटिकुलर फ्रेमवर्क रहता है कंडेंस्ड हो जाता है, और एक ऑर्डर्स में भी रीजनरेशन नहीं होता, मतलब कि ऑर्डर में रीजनरेशन नहीं होता। दीज आर पैथोलॉजिकल चेंजेस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। नाउ वी डिस्कस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस की वजह से लिवर सिरोसिस हो सकता है, लिवर फेल्योर और लिवर कैंसर हो सकता है। अब हम इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट सिरोसिस। सिरोसिस इज द slowly progressing disease in which a healthy liver tissue is replaced with scar tissue, eventually preventing the liver from functioning properly. In other words, in cirrhosis there is a replacement of a liver tissue by fibrosis, scar tissue and regenerative nodules, lumps that occurs due to attempt repair of a damaged tissue. The scar tissue blocks the flow of blood through the liver and slows the processing of nutrients, hormones, drugs, and naturally produced toxins. These changes lead to loss of a liver function. Cirrhosis slowly progressing disease होती है जिसमें लिवर टिश्यू की जगह स्कार टिश्यू आ जाते हैं। स्कार टिश्यू मतलब हार्ड टिश्यू, जिसकी वजह से लिवर अच्छे से काम नहीं कर पाता है। दूसरे वर्ड्स में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लिवर टिश्यू की जगह फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस का मतलब कि स्कार टिश्यू हार्ड टिश्यू आ जाते हैं, नोड्यूल्स बन जाती हैं और लंप बन जाते हैं। लंप जो रहते हैं डैमेज टिश्यू के रिपेयरमेंट की वजह से बनते हैं। स्कार टिश्यू जो रहते हैं वो लिवर में ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं और न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ड्रग की प्रोसेसिंग को स्लो कर देते हैं, टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं, और ये सारे चेंजेस की वजह से लिवर का फंक्शन लॉस हो जाता है। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द लिवर सिरोसिस थ्रू दिस फिगर।
Now we discuss hepatic failure, जिसे liver failure भी कहते हैं. Definition: liver failure is an uncommon condition in which rapid deterioration of a liver function results in a coagulopathy and alteration in a mental status. Liver failure indicates that liver has a sustained injury. Acute liver failure is a rare condition characterized by an abrupt onset of a severe liver injury. It means a loss of a liver function that occurs rapidly in a days or a weeks, usually in a person who has a no pre-existing liver disorder. लिवर फेल्योर अनकॉमन कंडीशन होती है जिसमें तेजी से लिवर का फंक्शन खराब हो जाता है, जिसकी वजह से कोगुलोपैथी और मेंटल स्टेटस में चेंजेस होते हैं. लिवर फेल्योर इंडिकेट करता है कि लिवर में इंजरी हुई है. एक्यूट लिवर फेल्योर रियर कंडीशन होती है जिसमें अचानक से लिवर में सीवियर इंजरी हो जाती है. एक्यूट लिवर फेल्योर का मतलब होता है कि लिवर के फंक्शन का लॉस हो जाता है तेजी से. ये तो एक दिन में भी हो सकता है या फिर वीक्स भी लग सकते हैं इसमें, और ये ज्यादातर उन लोगों में होता है जिनको पहले से कोई लिवर डिसऑर्डर ना हो. लिवर कैंसर, जिसे हिपेटोमा भी कहते हैं. डेफिनेशन: अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ लिवर ओरिजिनेटिंग इन मैच्योर लिवर सेल्स. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लिवर कैंसर इज अ hepatocellular carcinoma which begins in the main type of a liver cell. Other cancer is the much less common. मैलिग्नेंट ट्यूमर लिवर का मैच्योर लिवर सेल में ओरिजिनेट होता है, और जो सबसे कॉमन लिवर कैंसर होता है वो हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है, जो मैन टाइप ऑफ लिवर सेल में देखने को मिलता है, और अदर कैंसर बहुत कम देखने को मिलते हैं. This is all about hepatitis. Thank you so much. If you like my video, then like, subscribe and share my channel.